So, as we have started our chapter light, reflection and refraction, in your last lecture you have gone through converging and diverging cases of concave and convex mirror. So, as you know, our concave mirror is also called converging mirror, and convex mirror is diverging mirror, right? Concave, this is concave mirror, and this is the principal axis. You have gone through all these terms, that in case of mirror this center is called pole, as denoted as P, C for center of curvature, and in between P and C there is a point F called focus, and this is the principal axis. So if the rays are coming parallel to the principal axis, they will, in case of concave mirror, they will reflect from this point, and the reflecting rays will pass through the focus. Similarly, so all the rays are converge at one point in case of concave mirror, and in case of convex mirror this is convex, and in case of convex mirror at this side we have F and C. When a ray parallel to principal axis coming, it will reflect from this point and goes like this. This is incident, this is reflected. Same is here. You have to show this by arrows. And this convex mirror is diverging mirror. So as you see, the rays are diverging and they will meet at this point. So this is convex mirror, it is diverging mirror. Now we will see the difference between real and virtual images. So for ray diagrams, our next topic is ray diagram. This is concave mirror and this is principal axis. This is P, this is F. If object is placed at point this, then ray coming parallel to the principal axis will reflect and pass through focus, and if the ray coming toward focus, after reflection it will go straight, it will go parallel to the principal axis. This ray is coming parallel to principal axis, it will pass through focus, and the second ray coming and pass through focus and will go straight parallel to principal axis. So at this point both reflected rays meet, so at this point we obtain the image. So image is actually formed where reflected rays actually meet, reflected rays actually meet. So in this case where the rays are actually meeting and we are able to say this, we will get real image, we will get real image, and this image is inverted, so our image is real and inverted. फर्स्ट केस में क्या था कि जो लाइट आई वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से पास हुई. सेकंड रे जो थी वो आई तो फोकस में से, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो जब दोनों ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी. ठीक है,
एंड वेयर दे आर एक्चुअली मीटिंग, तो जो सच में ये मिल रही हैं और हमें दिखाई भी दे रही हैं, तो उस केस में रियल इमेज बन रही है और ये इन्वर्टेड है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, अगर मैं यही केस कन्वेक्स मिरर से लेके चलूँ, ये कन्वेक्स है, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है और ये इसका रिफ्लेक्टिंग है, देखो। नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस, तो पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस से रे पैरेलल आ रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। और अगर ये ऐसे ओब्लिकली आई, मान लो ये रे ऐसी आई, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी जाएगी। अब कन्वेक्स तो आपको पता है डाइवर्जिंग है, तो ये रेज भी देखो स्प्रेड हो रही है ना, ये डाइवर्जिंग है। तो ये रेज एक्चुअली कहाँ पे मिल रही हैं, देखो बैकवर्ड मिल रही है, ये पीछे को, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। और ये इमेज देखने में इरेक्ट है ना, और रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, ये हमने रेज आर अपेरेंटली मीटिंग हियर, पीछे से बैक से मिल रही हैं ये रेज। तो रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे इमेज बन रही है और इमेज देखने में इरेक्ट है। अगर इमेज इरेक्ट होगी तो वो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। जहाँ पे रेज एक्चुअली मीटिंग वहाँ पे रियल इमेज बनेगी, और जहाँ पे रेज इस केस में जैसे रेज बैकवर्ड मिल रही हैं पीछे से, सो दे विल बी शोन बाय डॉटेड लाइंस, वहाँ पे हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी, अगर इरेक्ट है, अगर वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी, या फिर यू कैन से अगर इरेक्ट इमेज है तो वो वर्चुअल इमेज होगी। उसके बाद रे डायग्राम्स हैं फॉर कन्वेक्स मिरर, फॉर कनकेव और कन्वेक्स बोथ। वी विल सी फर्स्टली, अगर ये कन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन P and C is also R, radius of curvature, and radius of curvature is R is equal to 2F, or you can say R by 2 is equal to F. This is relation between radius of curvature and focus और focal length. तो फर्स्टली हमारे पास अब डिफरेंट केसेस हैं कि अगर रे दिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, फिर वो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी। अगर कोई रे फोकस में से पास हो रही है, फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी। इफ़ द रे इज़ कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर उसका रिफ्लेक्टिंग पाथ कैसा होगा। अगर कोई रे सीधा पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है, फिर वो पोल से कैसे जाएगी। तो ये जो हैं सारे रे डायग्राम बनाने में ये हेल्पफुल होंगी। फर्स्ट हमारा केस है कि अगर कोई रे, जैसे मैंने ये एग्जांपल ली थी, हमने इसमें किया था, अगर कोई रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आएगी तो वो रे हमेशा फोकस से ही पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कनकेव का, यहाँ वो स्ट्राइक की, और इट विल पास फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल पास फ्रॉम द फोकस, ठीक है। और अगर यही केस मैं ऐसे ले लूँ कि ये है कनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगर रे फोकस से आ रही है, इंसिडेंट रे है जो वो पहले ही फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे, ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अगर तो रे पहले ही पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास करेगी। सेम केस अगर रे फोकस, इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों केस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इस केस में पैरेलल आई और फोकस में से पास हुई, इस केस में फोकस में से पास हुई और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर मैं लूँ यहाँ पे, ये था कनकेव, अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कन्वेक्स में क्या होगा। देखो कन्वेक्स में
कन्वेक्स में भी सेम ही होगा। अगर रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्ट होके ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी, आपने एरो से ही शो करनी है रेज, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी और ये पीछे आके मीट कर रही है फोकस पे, देखो ठीक है, डॉटेड लाइन से। बट अगर कोई रे, अगर यही जैसे हमने इसका ऑपोजिट केस किया था सेम, अगर मैं ऐसे लूँ, अगर रे पहले से ही फोकस की तरफ ही आ रही है, देखो रे आई, इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है ना, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अगर वो फोकस के पास आ रही है, फोकस, तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे भी यही होगा। इट विल गो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो इसी पॉइंट से हो रही है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको रे डायग्राम जब आपने बनाने हैं तो आपने वहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर फोकस में से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो वो हमेशा ही फोकस से पास होगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट है कनकेव मिरर है, दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इफ द लाइट, इंसिडेंट लाइट इज पास थ्रू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका पाथ वही होगा, वो उसी पाथ से वापस जाएगी, जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से रे क्या होगी, वापस जाएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द C पॉइंट ओनली। सिमिलरली इन दिस कन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में इस साइड F है, यहाँ पे C है ना, तो अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, पर रिफ्लेक्ट तो इसने यहाँ से ही हो जाना है, तो इसका सेम रिफ्लेक्शन के बाद वाला पाथ भी यही होगा, ठीक है। फर्स्ट केस ये हो गया कि अगर पैरेलल आई, फोकस में से गई, या फिर फोकस से इंसिडेंट रे पास होके पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर सेकंड केस है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे पास होके आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड केस है इसमें, अगर रे इंसिडेंट रे है जो वो ऑब्लिकली आएगी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C। अगर रे ऑब्लिकली आएगी टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर क्या होगा, तो वो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है। इंसिडेंट रे है, इट कम्स obliquely to the principal axis towards the point P, तो after reflection it will go obliquely into this direction. The incident or reflected rays here follows the laws of reflection, means angle of incidence is equal to angle of reflection. Similarly अगर मैं बात करूँ कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये ना P रे आई यहाँ ओब्लिकली आएगी ना, तो वो ऐसे ही जाएगी। सिमिलरली I इज इक्वल टू R, यहाँ पे भी क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड इन ऑल द अबव केसेस विच वी हैव डिस्कस। क्लियर? सो these are the some ray diagrams which will be useful for making the ray diagrams when we know the position of the object and we have to find out the position of the image. So we will see in case of concave mirror, in case of concave mirror, if the object is placed at different positions, like
if it is placed at center of curvature, if at focus, then where we will get the image. In case of concave mirror, we have total 6 cases. 6 cases is, फर्स्ट केस होगा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो हमने इन्फिनिटी से रखा है, क्योंकि जो रे आनी है, जो इंसिडेंट रे आनी है वो ऑब्जेक्ट से आएगी. सेकंड केस है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सी रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. थर्ड हम लेंगे कि अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को एट सी रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर. फोर्थ हम लेंगे अगर हमने बिटवीन सी एंड एफ अपने ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, फिर उसकी इमेज कैसी बनेगी. फिफ्थ में फोकस पे रखेंगे, और सिक्स्थ में हम रखेंगे बिटवीन फोकस एंड फोल. तो हमने इन सब में डिस्कस करना है कि हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी. इमेज की हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं. एक तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे बनेगी, जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी. मैंने अभी आपको बताया था कि रियल और इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल और इरेक्ट, और उसका साइज कैसा होगा इमेज का. ठीक है, तो हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट केस में क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है. ये है मेरा कनकेव मिरर. ये P होगा, ये F, ये C. ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब यहाँ कहीं दूर होगा. फर्स्ट रे आई, अगर तो रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रे फोकस में से पास करेगी. ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्शन. ठीक है, और अगेन ऑब्जेक्ट ये है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो अगेन पैरेलल आ रही है तो फोकस में से पास करेगी. ठीक है, तो मतलब, और इमेज कहाँ पे बनेगी हमेशा याद रखना है, इमेज वहाँ पे बनेगी जहाँ पे रेज रिफ्लेक्शन के बाद आपस में मिल रही हैं. तो इस फर्स्ट केस में आपकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है, इन्फिनिटी पे. और जो इमेज बन रही है, मैंने क्या बोला था, इमेज के बारे में हम क्या क्या बताएंगे. इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ. ठीक है, इमेज का साइज क्या है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, यू कैन से, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड. जबकि ऑब्जेक्ट क्या है, इनलार्ज. नेचर, नेचर मतलब कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल या इरेक्ट है. देखो रेज एक्चुअली मीटिंग, हम कोई मतलब ज़बरदस्ती रेज नहीं मीट कर रही है यहाँ पे, दे आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट. तो एक्चुअली मीट कर रही है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी. ठीक है, सेकंड केस लेते हैं. सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिहाइंड सी. दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C. हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिहाइंड C. ये है मेरा ऑब्जेक्ट C के पीछे. पहली रे तो हमेशा पैरेलल लेके आओ, और पता है पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास होके जाएगी. ठीक है, ये आपने पेंसिल से डायग्राम्स बनाने हैं और स्केल यूज़ करना है. और अगर कहीं पे मैनिपुलेशन करनी पड़े तो आप मैनिपुलेशन भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे ना तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी. तो ये सारी आपको, इन सबकी इमेज की पोजीशंस आपको पता ही होगी पहले से. तो इरेजर से इरेज करके बार बार इमेज ऐसे नहीं बनानी. अगर मैनिपुलेशन करनी पड़े थोड़ी बहुत तो करनी है. इस यहाँ पे फोकस से पास होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है, रे हमने 3 केस किए थे अभी यहाँ इससे पहले, तो उनमें से रे डायग्राम में जब आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता तो आपने कोई भी 2 केसेस यूज़ करने हैं, कोई भी 2 रेज पास करवानी है आफ्टर रिफ्लेक्शन. जहाँ पे वो मीट करेंगी वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी. देखो फर्स्ट रे तो हमारी ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस से वो पैरेलल आई और फोकस से पास करी. सेकंड हम लेते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास हो रही है. ठीक है, फोकस से पास होके गई और ये रिफ्लेक्शन के बाद आके यहाँ मिल रही है. देखो यहाँ मिली और ये बनी इमेज, ये इमेज बन गई जहाँ पे वो एक्चुअली मीट करेगी. तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिहाइंड सी. ठीक है, और जो इमेज है मेरी
इमेज की पोजीशन कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ। देखो सी और एफ के बीच में इमेज बनी है ना। साइज क्या है? साइज है डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा। नेचर क्या है? रेज आर एक्चुअली मीटिंग, रियल एंड इन्वर्टेड। बस यही आपको बताना है। अब ये यहाँ पे आपको रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए भी आ सकते हैं, और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पे होगा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, और या कंप्लीट रे डायग्राम बनाना भी आ सकता है। थर्ड केस लेते हैं, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या रख रहे हैं अपना ऑब्जेक्ट, तो ये याद रखना है अपने कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। इमेज को आप ए और बी, ऑब्जेक्ट को ए और बी से डिनोट कर लो, और जो इमेज आएगी वो ए डैश और बी डैश। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनेगी। तो यहाँ पे ये तो पहले ही पता है, तो इरेजर से बार बार इरेज करके बनाने से अच्छा है कि आप पहले ही अपना आइडिया लेके चलो। पहले रे आई पैरेलल, फोकस से पास करेगी, ठीक है। फिर दूसरी रे फोकस से पास करवाओगे तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जहाँ पे वो मीट करेंगी वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। और ये मीट देखो इसी सी पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में पोजीशन क्या है? पोजीशन है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट की, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। साइज क्या है? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और नेचर क्या है? एक्चुअली रेज आर एक्चुअली मीटिंग ना, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फोर्थ केस लेते हैं हम। फोर्थ केस क्या है हमारा? अगर बिटवीन सी एंड एफ क्या है? बिटवीन ये दिस इज व्हाट, दिस इज पोल, दिस इज एफ, दिस इज सी। सी और एफ के बीच में हम क्या रख रहे हैं? अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। तो पहली रे आई इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, ये गई। उसके बाद सेकंड रे क्या करो? फोकस से पास होके अपने स्केल से बिल्कुल मेजर करके अपनी इमेजेस बनानी है। दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C। ऑब्जेक्ट है आपका बिटवीन C एंड F। पहले रे आई पैरेलल और वो फोकस से पास होके जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद फोकस से पास करेगी और वो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए यूजिंग स्केल। ये जहाँ पे एक्चुअली दीज रेज आर मीटिंग वहाँ पे क्या बनेगी? आपकी इमेज बनेगी। अब यहाँ पे देखो इमेजेस बी डैश और ए डैश, ऑब्जेक्ट है आपका ए बी। पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज की पोजीशन क्या है? बिहाइंड, इमेज की पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी, है ना, बियॉन्ड सी। ये सी है, बियॉन्ड सी। साइज क्या है इसका? इनलार्ज मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज था इमेज का साइज उससे बड़ा है। नेचर कैसी है इमेज देखने में? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है केस हमारा फिफ्थ केस है कि अगर फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी थी फर्स्ट केस में, बट अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा फिर उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। ये रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? दिस इज P F C। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं हम? फोकस पे ऑब्जेक्ट। कोई भी दो रेज यूज करनी है रे डायग्राम बनाने के लिए ना,
तो हम पहले तो पैरेलल ही लेके आएंगे। पैरेलल लेके आएंगे तो आपको पता है वो फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्शन है। सेकंड रे जो हम यूज़ कर रहे हैं, 3 केस किए थे हमने। या तो आप ओब्लिकली पोल की तरफ आएगी तो ओब्लिकली ही जाएगी, देखो, या तो ये केस है, ओब्लिकली आई पोल की तरफ और ओब्लिकली ही जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। या सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होके जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। या रिफ्लेक्शन यहाँ से होगी ना, इस पॉइंट से। ये यहाँ पे मैंने 3 रेज यूज़ किए, आप कोई भी 2 कर सकते हो, ठीक है। बट आपको ये दिख रहा है ये रेज जो हैं ये इधर की तरफ जा रही हैं, मींस फोकस पे होगा तो इमेज कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो पोजीशन इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, इन केस ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज का साइज क्या होगा इस केस में, अब हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। और थर्ड हम नेचर देखते हैं, नेचर क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट केस 6, जब आपका जो क्या है ये ऑब्जेक्ट है आपका एफ और इसके बीच में है, एफ और पी के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट है, उस केस में क्या होगा, देखो फर्स्ट रे आई पैरेलल आएगी, और पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास होके जाएगी, ठीक है। सेकंड केस ऑब्लिकली लेते हैं, पोल की तरफ आई और ऐसे जाई। अब ये रेज यहाँ से तो ये रेज नहीं मिलेंगी। अगर मैं इन रिफ्लेक्टेड रेज को अपरेंटली मीट करवाऊं, ये पीछे से देखो, तो ये कहीं जाके मिल रही है, और जहाँ पे ये मिलेंगी, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश। तो देखने में ही ये इमेज क्या है, हाईली इनलार्ज है। हमारी जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है इमेज बिहाइंड द मिरर। ये मिरर है, इमेज उसके पीछे बन रही है, तो दिस इज बिहाइंड द मिरर। और साइज क्या है, enlarged। और नेचर क्या है, नेचर देखो, रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, हमने इनको अपेरेंटली मीट करवाया है, तो वर्चुअल और इमेज इन्वर्टेड नहीं है, देखने में ये इरेक्ट है ना, इरेक्ट। क्लियर। सो दीज आर द 6 केसेस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। तो क्या है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, तो उसकी वो क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी वो, ठीक है। सेकंड केस था कि अगर बियॉन्ड सी रख रहे हैं, फिर इमेज जो है एफ और सी के बीच में बन रही है और वो डिमिनिश बन रही है, रियल इन्वर्टेड। फिर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो हमारी जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की होगी। देखो सेकंड केस था, सेकंड केस था ऑब्जेक्ट था हमारा बियॉन्ड सी और इमेज बनी सी और एफ के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ केस है हमारा, ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में और इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। ये दोनों केस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। जैसे फर्स्ट और फिफ्थ है वैसे ही सेकंड और फोर्थ है। फिर अगर एफ पे, फिफ्थ वाला केस, अगर एफ पे है, फोकस पे है अगर, तो वो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। और अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर और वो इनलार्ज बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। दीज आर द 6 केसेस ऑफ द कनकेव मिरर। क्लियर। नाउ वी विल सी कि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। उससे पहले कनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं। कनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स और व्हीकल की हेडलाइट्स में हम कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर यूज्ड एज शेविंग मिरर ऑल्सो, डेंटिस्ट भी कनकेव मिरर यूज़ करते हैं टू गेट द इनलार्ज व्यू। क्लियर। उसके बाद है आफ्टर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर,
वी हैव द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे भी सेम हमने यही करना है, यहाँ पे भी हमने कन्वेक्स मिरर में वही पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस में से पास करेगी रे, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसका सेम पाथ होगा। जो हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे उन्हीं रेज डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, कन्वेक्स मिरर के केसेस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के हम सिर्फ 2 ही केस स्टडी करेंगे, सिर्फ 2 पोजीशन लेंगे ऑब्जेक्ट की। पहले हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फोकस पे इमेज बनेगी ना। फर्स्ट केस में अब हम कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स, दिस इज कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये है P, दिस इज F, दिस इज C। ये सारा तो आपने ये सारी टर्म्स पढ़ी है ना, इधर इसका सर्कल बन रहा है तो इधर ही होगा इसका फोकस। यहाँ पे रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये देखो, अगर आप स्केल से बनाओगे ना फिर आपको ये वो नहीं होगी, तो आपकी रेज बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी और ये बैक मीट करेंगी F के ऊपर। दिस इज द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो इस केस में क्या है, हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या ली है, इन्फिनिटी पे ना, ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है कहीं दूर, A और B। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज की पोजीशन क्या है, F के ऊपर फोकस पे। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है, पॉइंट साइज इमेज है। नेचर क्या है, नेचर देखो ये पीछे आके मिल रही है, तो नेचर क्या हुई इसकी, वर्टिकल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, एक और केस लेके चलते हैं हम। अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे अदर देन इन्फिनिटी, किसी भी पॉइंट पे रखो अदर देन इन्फिनिटी। ठीक है, ये है कन्वेक्स मिरर। अगेन दिस इज F, दिस इज C। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, तो फर्स्ट केस मैंने क्या लेना है कि लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई ऐसे। सेकंड केस कोई भी ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। देखो या तो ओब्लिकली पोल, अगर ओब्लिकली आ रही है पोल के पास, तो हमने क्या किया था कि रिफ्लेक्शन के बाद भी वो ओब्लिकली ही जाएगी रिफ्लेक्ट होके। और ये 2 रेज हैं, देखो ये बैक पीछे से मिलेंगी ना ऐसे, और ये मिल रही है यहाँ पे। देखो ये भी अगर पीछे से मैं मिलाऊं तो ये पॉइंट पे, ये मीटिंग पॉइंट है ना, इमेज वहीं पे बनती है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं। आगे तो ये मीट ही नहीं करेंगी, स्प्रेड हो रही है, तो ये मीट करेगी पीछे जाके, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट और ऑब्जेक्ट ये बन गई पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखने में आपको पता लग रहा है कि जो इमेज की पोजीशन है वो बिहाइंड द मिरर है इस केस में भी। ठीक है, और जो साइज है वो क्या है, डिमिनिश, देखो छोटी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है ना इमेज, डिमिनिश्ड। और नेचर क्या है, इरेक्ट है ना, तो इट मीन्स नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो कन्वेक्स के सिर्फ ये 2 ही केसेस हैं, एक इन्फिनिटी और एक अदर देन इन्फिनिटी पॉइंट पे। इसके यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर, और एज इट कवर्स वाइड व्यू, ये व्हीकल्स में भी साइड मिरर यूज़ करते हैं हम, तो वो कन्वेक्स ही होता है, वाइड व्यू देता है ये पीछे का सारा। फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कनकेव मिरर हम इनलार्जमेंट के लिए, जूम करने के लिए कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, तो कन्वेक्स जो है ये वाइड व्यू कवर करता है। ठीक है, तो इसके 2 ही केसेस हैं। उसके बाद हमारे पास आगे आते हैं साइन कन्वेंशंस हैं स्फेरिकल मिरर के। साइन कन्वेंशंस मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो उसका डिस्टेंस हम कैसे लेंगे फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। दीज आर द साइन कन्वेंशंस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये रे डायग्राम्स हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।